Good afternoon, sir. Yes, Vita, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Beta. How are you, sir? I am fine, and you are? What? Fine, sir. You are also fine? Okay, very good. Okay. Your ma'am told you, Beta, about this thing. Today, computer class will be instead of SST class. Yes, sir. Okay. In your last class, how many students were there total? Which was your last class? Before that, Radhika is saying something, but she is muted. Radhika, Beta, first unmute yourself, then you can speak. Ria, which was your last class before that? Sir, Saturday. No, no. I'm asking about today. Means before this computer class, which was your fourth period? This is the fifth period now. Which Yes, was sir. Science. okay? Science period was there, and who took that? Yes, sir. Who was the teacher? Sir, Sudesh Tomar, ma'am. Okay. In total, how many students were present? Did you notice that? In participant, how many participant it was showing? Sir, 26 or 27. 26 or 27 only. She Yes, take sir. all the sections. Ma'am take now. Yes, sir. On very less students was in your class, Vita. Sir, what? Very less students in 7th class taking the online classes. Sir, don't know why students don't take online class. Okay. If someone are your friends also who are not taking the class, Yes, sir. then you don't say to them that why don't you come into online class? Sir, we don't chat. Why? At least this kind of things you should chat now. No, sir. Sometime you should make a call that why don't you come in the online class? That online classes are going Sir, we very nice. only take Good help afternoon, in sir. work if we have some problem in our work. They also take. Good afternoon, sir. Good afternoon. Who spoke? I don't know. Who said this? Good afternoon. मुझे सुनाई तो Saurav दिया बट Balara. हाँ. Saurav Balara. So where are you? Raise your hand like this. Good सौरभ लहरा afternoon, मुझे दिख sir. नहीं In रहा video. स्क्रीन पर. Good सौरभ लहरा afternoon, बेटा sir. वीडियो तो ऑफ करे बैठा गुड आफ्टरनून बोल रहा है. पहले तो वीडियो ऑन किया कर फिर बोला कर. हाँ गुड आफ्टरनून Good बेटा एवरीवन. एवरीवन बेटा स्टार्ट योर वीडियो फर्स्ट. Sir, the last afternoon, time sir. जो आपने स्क्रीन शेयर नहीं की थी, बट आपने हाँ एक्सप्लेन क्या किया था? नहीं आज आज मैंने ना वही बताओ. क्या किया था. आपने स्क्रीन शेयर नहीं की थी और एक्सप्लेन कर दिया था. हाँ एक्सप्लेन किया था बट उसका मैंने वीडियो बना के भेज दिया अब आपके पास. आपने देखा नहीं वीडियो. जो चीज़ मैंने Yes, सिखाई थी sir. ना ओके देखा सर. है. देखा है. ओके सर. हाँ उसका तो मैंने वीडियो बना के भेज दिया आपके पास. जो वो नहीं किया था ना मैं भूल गया था. बट आज मैंने रिकॉर्डिंग ना पहले से स्टार्ट कर दिया. अब रिकॉर्डिंग हो चुकी है पहले से. मॉर्निंग सर। तो सारी रिकॉर्डिंग ओके सर. पिछली बार मैं दोनों ही बातें भूल गया था. रिकॉर्डिंग भी भूल गया था और स्क्रीन शेयरिंग भी करना भूल गया था. ठीक है. तो वीडियो भी मुझे दोबारा बाद में बनाना पड़ा अलग से. ओके सर. ओके. चलो कोई बात नहीं. इस टाइम मैंने ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है. और अभी मैं जब स्टार्ट करूँगा तो कुछ बच्चों को अनम्यूट करके रखूँगा ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बीच में बोल सकें. Good afternoon, sir. यस गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. सर हमको रख लेना. हमको कौन
किसको नाम बोलो? सौरव? अच्छा चलो यस ठीक है, सौरव को कर दूंगा एक सर को। हमें रख लेना। एक सौरव, एक रिया, एक राधिका। चलो आज इनको रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर किसी और 3 को कर दूंगा, ठीक है? ऐसे मतलब हर क्लास में 2 या 3 बच्चों को अनम्यूट रखा करूंगा, ओके सर। ताकि वो बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होने लगे तो उसी टाइम बोल सकें कि सर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, या क्लियर नहीं आ रहा है, या वॉइस नहीं आ रही। ओके सर। ओके ठीक सर। है? ओके। हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। ये दीक्षा मलिक एंड लक्ष्य गुड है। आफ्टरनून सर। Good, everyone good गुड afternoon beta, आफ्टरनून don't say सर। one by one, all of you good afternoon. And some of the students beta start your video. Diksha Malik, Vivek and Lakshay, ये वो बच्चे आई थिंक जो या तो नाते नहीं है, who has not taken the bath today, they keeps their videos switched off. ये विवेक 7th green, लक्ष्य 7th blue. लक्ष्य 7th blue. वीडियो क्यों ऑफ कर रखा बेटा? लक्ष्य स्पीक। लक्ष्य, कैन यू लिसन टू मी? Just tell me why your video was switched off. सॉरी सर। Okay, all the students beta, your video must be switched on, okay, while taking the class. हर टाइम आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए एक तो, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज you will sit in proper sitting posture. जैसे सही तरीके से बैठ के जैसे ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, ठीक है? आप अगर थोड़ा बहुत सारा ले रखा है वो तो ठीक है, क्योंकि थक जाते हैं, पर लेट के नहीं। जैसे ये दिया बल्हारा, दिया बल्हारा, यस सर। वेयर इज शी? ये पहले तो इसने वीडियो ही ऑन नहीं कर रखा, फोटो लगा रखी है, और वो भी सोती हुई की। बेटा वीडियो ऑन रखना है, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, फिर आपने पिक्चर नहीं लगानी अपनी, वो फोटो का पता लग जाता है, फोटो एक जगह रुकी रहती है, वीडियो आप हिलते हुए दिखते हो, आप ये सोचते हो चलो फोटो लगा देते हैं, सर को लगा वीडियो ऑन है, ठीक है? वीडियो ऑफ करोगे तो पता लग जाता है। Okay, I think a lot of time 6 minutes are gone, so let's start today's class. So I am first unmuting all of you. After that I will unmute 2 or 3 students. Okay, mute all. Now Radhika beta, unmute yourself. Click on the unmute option, appear in front of you. Radhika, yes, yes, done. And Saurav, unmute yourself. सर डन। Done. Okay. And where is Ria? Ria beta, raise hand. You are lost somewhere. Click on raise hand option so that I can see you. आप पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे मुझे, किसी दूसरी स्क्रीन पे आ गए हो या तो शायद। हाँ ठीक है, हो गया है। And unmute yourself. Okay, done. So speak something beta, Ria beta, so that I can listen to you, that voice is coming properly. Can you listen to me? यस सर। वॉइस Okay. Yes, right. So ये 3 स्टूडेंट अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, ये लक्ष्य को किसने अनम्यूट कर दिया? Stormy. Okay, let's start with the class. I am going to screen my I am going to share my screen with you, and screen share करने के बाद जैसे मैंने आपको बता रखा है,
देखो जो अब आपके टीचर्स होते हैं ना, स्क्रीन शेयर करते हैं, अगर वो मोबाइल से क्लास ले रहे हैं तो आपने जो अपने मोबाइल को कैसे रखना है, कि कौन बच्चा है, हाँ क्या नाम आया था अभी, रमन राठी, करिश्मा, ये बच्चा, रिया बेटा ये नेम नोट करना, रमन राठी, करिश्मा, इनके ना मार्क्स काटूंगा Okay, प्रैक्टिकल में। ओके सर। जो ये एनोटेशन कर रहे हैं ना, बीच में कुछ कुछ Yes, sir. टाइप करते हैं, ठीक है, अब जो भी करेगा उसका नाम आ जाएगा और उसके मार्क्स कट करेंगे, सर। ठीक है। प्रैक्टिकल में, पढ़ाई में तो दिमाग लगाते नहीं, फालतू चीजों में इतना दिमाग चलाते हो। रिया बल्हारा, इसका भी नोट करो। ओके सर। इसने वीडियो भी ऑफ कर रखा था ना अपना, दिया ने वीडियो ऑफ करके बैठी है और ये एनोटेशन करने में सबसे आगे। ओके बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एमएस वर्ड अपना ओपन कर रहा हूँ। ये दिया बल्हारा, बेटा मान जाओ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं एनोटेशन बंद भी कर सकता हूँ बिल्कुल क्लोज, कि आप कर ही ना पाए, बट मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, यही नोट करने के लिए कि कौन कौन है। एक विनय मलिक, ये नोट करना नेम। रिया Okay, बेटा आप sir. नोट करना, आप मुझे बताना ये नेम जो जो है मैं बोल Okay, रहा हूँ, sir. ठीक है। पेंसिल ले लो, साथ में नोट करते जाओ, कहीं लिखते जाओ इनके नेम। क्लास के बाद मुझे सेंड करना। ओके सर। ओके, एक बार मैं ये कर दूं, क्लियर कर दूं ड्राइंग जो ये बना दिया इन्होंने। ओके, सो आई एम ओपनिंग द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ओपन कर कैसे करते हैं, ये सबको आता होगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था, वो सीखा था मेल मर्ज क्या होता है। रोनित, ये रोनित का भी नाम नोट करो। जो भी लिख रहा है बेटा, जो भी ट्राई कर रहा है ये करने की, उसका नाम मेरे पास आ जाता है, पता लग जाता है, टीचर के पास नेम चला जाता है, उसके पास रिकॉर्ड चला जाता है, और ये पूरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये प्रूफ भी बन रहा है साथ साथ। जब मैं ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा ना प्रिंसिपल सर को या फोगाट सर को या आपके पेरेंट्स को, कि देखो ये बीच में ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, क्लास में पढ़ाई तो करते नहीं, बस ये डिस्टर्ब करने आते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मेल मर्ज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें मैं लास्ट का कुछ वो शेयर स्क्रीन करना भूल गया था, तो बट उसके लिए मैंने वीडियो बना के आपको भेज दिया, आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना, सैटरडे को जो क्लास होगी तो उसमें मैं प्रॉब्लम ले लूँगा वो, ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर नहीं समझ आया तो। बाकी वो आ जाएगा समझ में आराम से वीडियो देखने से। मैंने वीडियो और भी ज़्यादा स्लो और अच्छे से बनाया है, ठीक है। तो अब आज देखते हैं, हम करेंगे ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस, सो यहाँ पे देखो ट्रैक, मैंने लिखा ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी एनीवन? जो तीन बच्चे हैं उनमें से बता सकता कोई? हु आर अनम्यूटेड। ट्रैक का मतलब क्या होता है? ट्रैक करना, किसी को ट्रैक करो, किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना, नोट करना कि वो क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं उसको ट्रैक करना, ठीक है। और चेंजेस का मतलब, तो कोई भी जो हम चेंज करते हैं, मतलब जो भी कोई भी बदलाव होता है उसको क्या बोलते हैं? चेंजेस। तो चेंजेस को ट्रैक करना मतलब चेंजेस को नोट करना। तो आज के जो चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, जब एमएस वर्ड में अगर कुछ चेंज करते हैं हम, और हमें ये नोट करना हो कि भाई क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं देखो अभी एंटर बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आप सारे ध्यान से देखना। अगर आप एमएस वर्ड में कुछ लिखना चाहते हो ना, एक तो आप टाइप करके भी लिख सकते हो, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। जब जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ करना है, कुछ वर्ड्स लिखना है, फिर उनको सिलेक्ट करना है, कुछ अलग अलग चीज़ें करनी है उनके साथ, तो आपको अगर आप लिखोगे 3-4 लाइनें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो, इससे आप बहुत जल्दी आप कुछ लिख सकते हो। जैसे इक्वल टू RAND, रैंड, रैंडम, ये रैंडम की शॉर्ट फॉर्म होती है रैंड, ओके। तो रैंड और इसके ब्रैकेट स्टार्ट करके कोई भी नंबर लिख दो, जैसे मैंने 5 मार्क्स लिख दिया, सॉरी 5, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद ये दिया बल्हारा नहीं मानेगी,
इसके तो घर कॉल करूंगा मैं। तो रेंट करके एंटर बटन मैं प्रेस करता हूं, तो एंटर बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, देखो अभी मैंने प्रेस किया, तो प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली 5 जितना नंबर आप लिखोगे ना ब्रैकेट के अंदर, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जितना नंबर लिखोगे उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड हो गया, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पैराग्राफ लिख के आ गए हैं। ठीक है, सौरभ बल्हारा, यस बेटा यू कैन स्पीक डायरेक्टली, यू नीड नॉट रेज हैंड। आप तो अनम्यूट हो, आप तो डायरेक्ट बोल दो। रेज हैंड उसने करना है जो म्यूट है, ठीक है, जो बोल नहीं सकते वो रेज हैंड करेंगे। यस सौरभ बलारा, बट यू वांट टू से बेटा स्पीक। सौरभ रेज हैंड किया सर आपने? ही इज अच्छा उसने म्यूट कर लिया अपने आप को। म्यूट क्यों किया भाई? जिसको मैं अनम्यूट छोड़ता हूँ उन्होंने अपने आप को म्यूट नहीं करना। कहाँ है सौरभ बलारा? चलो अनम्यूट करो अपने आप को। सर वो फॉर्मूला फिर से बताना। ओके फॉर्मूला फिर से बताऊँ? ठीक है फॉर्मूला बता देता हूँ। यस सर। शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन फिर से। ये देखो ये मैं डिलीट कर देता हूँ इसके बाद वाला सारा। देखो इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे मैंने पिछले बार 5 लिखा था, इसमें मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस बार 3 पैराग्राफ टाइप हो गए, पैराग्राफ 1 2 3। ओके, तो जितना भी रैंड लिखना इक्वल टू रैंड, और ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर डाल के और एंटर करना है। ठीक है, ओके सर। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, तो ये आ गया। अब हमने ट्रैक चेंजेस करना है। देखो ट्रैक चेंजेस का पहले तो मतलब क्या है कि, और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। सपोज करो आपको टीचर ने कोई ऐसे लिखने के लिए दिया रेलवे स्टेशन पर या दिवाली पर या किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, तो आपने ऐसे टॉपिक की हेडिंग बना ली और एक ऐसे लिख लिया। सपोज करो जैसे ये हमने उसका कोई भी जो ऐसे वर्क दिया आपने वो लिख लिया, ठीक है। बट अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका ऐसे जो है वो बाकी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने जो बड़े भाई बहन होते हैं उनकी हेल्प लोगे। तो आप क्या करोगे, आप ये उनको भेजोगे। मान लो आप वो आपसे दूर रहता है, आपने मेल से इसको भेज दिया, मैंने ऐसे लिखा है। ये लक्ष्य का नाम नोट करना बेटा, लक्ष्य 7th ब्लू। ओके सर। ओके सो तो आप क्या करोगे, मैं इसको भी एक बार ऑफ ही कर देता हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब करते ही रहेंगे डिसेबल पार्टिसिपेंट्स। चलो सो क्या बता रहा था मैं, ट्रैक चेंजेस। अच्छा तो अब क्या होगा कि अगर आपने जो भाई बहन है, जैसे आपके पास नहीं है कोई बड़ा भाई बहन है जैसे बड़ी क्लासेस में पढ़ता है, तो आप उनसे चेक करवाना चाहते हो इसको, और आप ये भी चाहते हो कि भाई अगर आपको कहीं ये लगे ना कि कोई गलती है तो उससे ठीक कर देना। आप अपने हिसाब से, आपको और लाइन ऐड करनी है या कुछ चीज़ डिलीट करनी है बीच में से, वो आप कर देना। ठीक है, तो आपने मेल से उसको भेज दिया, उसने करेक्ट की, और मेल करने के बाद वापस आपके पास भेज दिया। अब जैसे मान लो उसने कोई चेंज करके, जैसे इस इंसर्ट की जगह, या चलो मैं इस लुक की जगह उसने मान लो लिख दिया अपीयरेंस। ओके, तो उसने ये लुक की जगह क्या कर दिया, अपीयरेंस, लुक हटा दिया, उसकी जगह अपीयरेंस कर दिया। अब जब आपको भेजेगा तो इस डॉक्यूमेंट को देखते क्या आपको एकदम से पता लगेगा उसने कहाँ क्या चेंज किया है। अब इसको देख के कहीं कोई बता सकता है इससे पहले क्या चेंज किया गया है। जैसे भाई इसको देख के ऐसा कुछ हिंट नहीं मिलता ना कि भाई यहाँ पे इससे पहले लुक लिखा होता और लुक की जगह अपीयरेंस लिख दिया गया। ठीक है, तो मतलब जो भी चेंज अगर वो करेगा तो हमें ऐसा ही लगेगा भी ये डॉक्यूमेंट वैसा ही है जैसा गया था। या आपको एक एक चीज़ मैच करो, बिल्कुल मिला के 2 डॉक्यूमेंट साथ रखो, एक एक लाइन एक एक वर्ड उसका मिलाओ, ठीक है, मैच करो तो पता लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए, और अब हो सकता है जो चेंजेस हुए वो आपको पसंद आए या ना आए। मान लिया कि आपका भाई या बहन आपसे बड़ी क्लास में, बट उसने जो चेंजेस किया आपको बाद में लगा नहीं इससे अच्छा तो मैंने ही लाइनें लिखी थी, उसने जो तो लिखे हैं ये तो और भी ख़राब है। तो हो सकता है ना कि आपको वो चेंज पसंद ना आए और आप वैसा रखना चाहो जैसे आपका डॉक्यूमेंट था, ठीक है, लेकिन उसने तो चेंज कर दिया आप डॉक्यूमेंट में। तो इसी काम के लिए क्या बनाया गया, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को बनाया गया। अब इससे क्या होगा, अगर आप ट्रैक चेंजेस ऑन करके उसके पास भेजते तो वो जो भी चेंज करता ना,
चेंज करने के बाद जब वो आपके पास डॉक्यूमेंट भेजता है तो आपको क्लियरली नजर आते कि अच्छा ये चेंज किए गए हैं। ओके, कैसे आएंगे वो अब मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया ना? जो 3 बच्चे एटलीस्ट वो बोल के बताएं जो मैंने बताया, वो समझ आ गया अब तक? यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं कि इसको यूज करेंगे कैसे। तो ट्रैक चेंजेस को पहले तो ऑन करना है हमें। ऑन कैसे करेंगे? तो ऑन करने के लिए यहाँ पे देखो नीचे स्टेटस बार में यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ट्रैक चेंजेस ऑफ लिखा हुआ है यस है ना? सर। तो ये ऑप्शन है। वैसे आप शुरू में जब वर्ड को ओपन करते हो बाय डिफॉल्ट ये होता ही नहीं है, ये ऑप्शन स्टेटस बार में नहीं दिखेगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो ये कैसे लाओगे आप? ये स्टेटस बार में जो खाली जगह है, खाली जगह पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रैक चेंजेस। अभी तो ये यहाँ पे आया हुआ है इसलिए टिक का साइन है, बट आपको यहाँ टिक का साइन नहीं दिखेगा। आप एक बार इस पर क्लिक कर देना। जैसे मैंने क्लिक किया तो टिक का साइन हट गया, दोबारा करने से ये आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो वहाँ से जब टिक का साइन लगता है तो यहाँ पे ये आ जाता है, और जब ये हटता है देखो यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ से भी रिमूव हो गया, है ना? तो ट्रैक चेंजेस यहाँ से आप पहले इस ऑप्शन को स्टेटस बार में या तो ला सकते हो या यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये हो गया। तो सबसे पहले तो अगर ये यहाँ पे नहीं है तो आपको लेके आना है। ओके, तो अभी तो जैसे यहाँ पे आया हुआ, अब आने के बाद अभी लेकिन ट्रैक चेंजेस आ तो गया बट ये क्या है, ऑफ है। इसको ऑन कैसे करेंगे? इस पे देखो मैंने दोबारा इस पे क्लिक किया, क्या हो गया? ऑन हो गया। फिर से क्लिक किया, ऑफ हो गया। फिर से किया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो जितनी बार आप इस पे क्लिक करोगे ये ऑन ऑफ होता रहेगा। तो हम आपको क्या करना है, इसको जब किसी को भेजना है तो भेजने से पहले क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। अब आप इसको सेंड कर दो। अब सेंड करने के बाद क्या होगा, जब वो जो पर्सन है आपका भाई है या फ्रेंड है जो भी है, वो अगर कोई चेंज करेगा, रोनित, यस बेटा, वांट टू से समथिंग? रोनित, रेज योर हैंड। ओके, ये सास्टू, सर इट विल, यस बेटा। ये सब कुछ बता देगा सर कि क्या क्या उसने चेंज किया है जिसे हमने भेजा अभी है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे बताएगा, अभी वो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी समझ में आएगा। ओके, तो मैं एक बार शेयर करता हूँ, इसके बाद आप पूछना। आप जो कोई क्वेश्चन पूछ लेता तो अपना लोअर हैंड भी कर दिया करो रेज हैंड करने के बाद साथ साथ, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, चलो हम आगे कर चलते हैं। सो अब देखो आपने ऑन कर दिया ना। अब क्या हुआ कि अब मान लो यही डॉक्यूमेंट उसने भेज दिया, अब वो क्या करेगा, वो जब चेंज करना शुरू करेगा, जैसे कि हमने क्या चेंज करना है, मान लो ये अपीयरेंस की जगह मैं, अब देखो ये अपीयरेंस है और मैं एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लगा लेता हूँ क्योंकि मेरा कीबोर्ड तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है वो स्क्रीन पे लगा देता हूँ ताकि आपको कीबोर्ड भी दिखे। तो ये देखो सबको कीबोर्ड दिख रहा है। तो अब देखो मैं अपीयरेंस को, उसने मान लो मैं, वो क्या चाहता है, वो अपीयरेंस को कट करके वापस लुक लाना चाहता है, ठीक है? तो वो इसको पे क्लिक किया और फिर बैक स्पेस, तो यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस पे क्लिक कर रहा है। देखो वो जब डिलीट कर रहा है तो क्या हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा। पहले क्या हो रहा था, ये हट जाता था, बल्कि अब डिलीट नहीं हुआ, इसका कलर चेंज हो गया, उसके बीच में से एक लाइन आ गई। ओके, तो ऐसे होगा। और जब वो कोई नया वर्ड लिखेगा, जैसे इसकी जगह पे उसने क्या लिखा, लुक, तो जो नया वर्ड लिखा वो क्या हुआ, ब्लू वर्ड कलर में लिखा हुआ आया है और डबल अंडरलाइन आई है। एक्चुअली जब आप इसको करोगे ना, आपका ये दोनों जो है रेड कलर में आ गया। कोई कट करोगे वो भी रेड कलर में और ये भी रेड कलर में। ये मैंने एक्चुअली कलर चेंज कर दिए थे, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आपके रेड कलर में आएंगे। तो बट जो डिलीट करोगे आप इसको, ट्रैक चेंजेस को ऑन करने के बाद जो भी चीज़ डिलीट की जाएगी वो ऐसे मतलब वो डिलीट नहीं होगी, बल्कि उसमें एक ऐसे लाइन लगी आ जाएगी। जैसे लिख के हम नोटबुक में होता है ना, नोटबुक से भी हम डिलीट नहीं कर सकते लिखने के बाद, कट कर सकते हैं उसको, तो ऐसे ही कट हो जाएगा ये। और जो नया वर्ड लिखोगे वो बाकी सबसे थोड़ा अलग कलर में और ऐसे अंडरलाइन हुआ हुआ नजर आएगा। ओके, तो अब वो जो भी चेंज करेगा, मान लो उसने इस वैन को डिलीट कर दिया यहाँ से, यहाँ पे उसने मान लो कोई एक नई लाइन लिख दी, कुछ भी, मैं अभी बस टाइप कर देता हूँ, उसने लिख दिया दिस इज ए न्यू सेंटेंस, उसने कोई भी एक सेंटेंस ऐसे ऐड कर दिया। तो जहाँ जहाँ वो चेंज करेगा वो चेंजेस देखो बिल्कुल ऐसे अलग नजर आएंगे क्लियरली। तो जब वो हमें वापस भेजेगा तो हम देखते ही पता लग जाएगा अच्छा उसने क्या क्या चेंज किया। एक तो ये अपीयरेंस को यहाँ से कट कर दिया, इसकी जगह लुक लिख दिया, यहाँ से वैन को हटा दिया है और यहाँ इस पैराग्राफ के एंड में एक नई लाइन लिखी है, ठीक है? तो इस तरीके से वो आपको अलग से चेंजेस नजर आएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस डॉक्यूमेंट में अगर आपको ये चेंजेस पसंद आते हैं तो आप इसको वैसे भी, एक बार मैसेज आ रहा है किसी का, मैं चेक कर लूँ,
कुछ बच्चों के मैसेजेस, सर आपने हमें म्यूट कर दिया। मैंने म्यूट नहीं किया बेटा, आप खुद ही कर लेते हो अपने आप को। सौरभ बलारा, चलो आप अनम्यूट, आप म्यूट ही रहो। और एक और सौरभ है, सर आपने हमें म्यूट कर दिया। इससे पहले है रोनित का द प्रोसेस नोन एज ट्रैक चेंजेस। हाँ ठीक है बेटा, इसी प्रोसेस को ट्रैक चेंजेस कहते हैं। इस प्रोसेस को भी बोलते हैं, और एक जो फीचर है, इस फीचर का भी नाम ट्रैक चेंजेस है। और सो यू हैव म्यूटेड मी, फिर से सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही। हाँ, जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मेरी वीडियो नहीं दिखेगी बेटा। दिया बलारा ने पूछा है। एक चीज़ होती है, जब स्क्रीन शेयर हो जाते हैं उस वक्त पिक्चर नहीं, क्योंकि अगर उस वक्त मेरी फोटो दिखेगी तो जो स्क्रीन है मेरी वो दिखाई नहीं देगी आपको, ठीक है। तो उस टाइम के लिए अपने आप रुक जाती है। आप जैसे दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा फिर से। इसलिए तो स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि स्क्रीन दिखे आपको, जो समझा रहा हूँ वो समझ में आए अच्छे से। ओके, तो अब क्या करते हैं हम, तो ये ट्रैक चेंजेस को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और तो ये हमें सारे चेंजेस नज़र आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर एक टैब है, रिव्यू टैब। अगर मैं इस रिव्यू टैब में जाऊँ तो ये ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड सारे ऑप्शन मुझे यहाँ दिखते हैं। तो देखो ये यहाँ भी ट्रैक चेंजेस है। ये जो यहाँ ट्रैक चेंजेस मैंने बताया था आपको, ये और ये वाला एक सेम चीज़ है। आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑफ किया तो यहाँ भी ऑफ हो गया, यहाँ ऑन किया तो यहाँ भी ऑन हो गया, ठीक है। या उल्टा भी है, मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ तो देखो यहाँ भी ऑफ हो गया, और यहाँ पे ऑन किया तो यहाँ भी ऑन हो गया, है ना। तो चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से। यहाँ पे क्या है, रिव्यू टैब में आने के बाद ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन है, और या फिर स्टेटस बार में, ठीक है। तो ऑन ऑफ तो आप इन दोनों से कर सकते हो। अब बात क्या है कि जो चेंजेस हो गए, अब अगर आपको लगता है कि नहीं पहले आपका डॉक्यूमेंट जैसे था वैसा ही रहे, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल, जो पहले था। और अगर आपको लगता है जो ये चेंजेस किए गए ये सही है, मतलब ये अपीयरेंस यहाँ से हट जाना चाहिए जो डिलीट किया गया है, और लुक आ जाना चाहिए उसकी जगह पे, और व्हेन हट जाना चाहिए, और एक ये नया सेंटेंस आ जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, फाइनल। फाइनल का मतलब है जो चेंजेस करने के बाद डॉक्यूमेंट जैसा होगा। ओके, अब ये करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ही ट्रैकिंग चेंज में ऑप्शन है फाइनल। अगर मैं इस पे करता हूँ तो यहाँ अगर मैं फाइनल पे क्लिक करूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, जो, चलो पहले ओरिजिनल देखते हैं कि ओरिजिनल कैसे था। ओरिजिनल पे क्लिक किया तो ये देखो शुरू में ये ऐसा था, ट्रैक चेंजेस ऑन करने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ था ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। फिर जब चेंज किया, चेंज करने के बाद क्या किया, इस अपीयरेंस की जगह क्या कर दिया था, कट करके लुक कर दिया था, और यहाँ पे वैन को कट कर दिया था, और यहाँ पे एक नया सेंटेंस आ गया था ना। तो अब अगर अब मैं क्या करूँ, फाइनल करूँ, यहाँ पे देखो फाइनल करता हूँ तो जो चेंजेस करने के बाद था, देखो ये नया सेंटेंस जो था वो आ गया, यहाँ से वैन कट हो गया है, और यहाँ पर जो था वो अपीयरेंस की जगह लुक आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसा भी डॉक्यूमेंट, अगर आप पहले वाला देखना चाहते हो तो पहले वाला भी, भाई जब हमने ट्रैक चेंजेस करने से पहले जब उसको भेजा था तब कैसा था, ऐसा था, और अब उसने जो चेंज करके दिया है वो कैसा है, वो ये सॉरी ये वाला फाइनल वाला अब वाला है, और ओरिजिनल वाला जो पहले था, ठीक है। और जो ये एक ऑप्शन, सॉरी इसमें से ऑप्शन आ रहा है ना, फाइनल शो मार्कअप, ओरिजिनल शो मार्कअप, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे फाइनल वाला देखो चाहे ओरिजिनल वाला देखो, बट आपको मार्कअप दिखाई देंगे। मार्कअप का मतलब जो जो चेंज किए गए, अगर वो चेंज देखना चाहते हो भी किया क्या गया, भाई किसको डिलीट किया गया और क्या आया, वो भी आप देखना चाहते हो, तो ये चाहे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो चाहे ये वाला, ठीक है। तो ये थे, ये ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार आप ट्रैक चेंजेस को यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई कौन कौन से चेंज शो होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जब शो मार्कअप जो नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर देखो कोई कमेंट किया गया, मैंने एक बार ट्रैक चेंज को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद अगर कोई भी कमेंट किया जाएगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा और अलग से दिखेगा भाई ये कमेंट बाद में किया गया है, ठीक है। ऐसे ये जितने भी ऑप्शंस लिख रखे हैं ना, इंक है, इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन का मतलब होता है जब कोई नया वर्ड ऐड होता है उसको इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। और कोई वर्ड आप डिलीट करते हो या कट करते हो तो उसको डिलीशन बोलते हैं। तो ये भी नोट हो रहे हैं। अभी फॉर्मेटिंग कोई चेंज करते हो, अगर आप किसी का कलर चेंज किया गया है बाद में तो वो भी नोट हो जाएगा, आपको दिखेगा भाई ये कलर बाद में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ नोट हो रही है। अगर आप इसमें से कोई चीज़ नहीं चाहते, जैसे मैं चाहता हूँ इंसर्शन और डिलीशन जो चेंज हुए हैं वो नहीं देखने आपको, तो आप इसमें से हटा दो,
तो हमने तो अभी यही दो चेंज किए थे, तो जो इंसर्शन और डिलीशन जो हुए थे ना, वो चेंजेस अब नहीं दिख रहे हैं हमको, है ना, कि कुछ भी डिलीट किया था वो भी नहीं दिख रहा। जैसे वैन को डिलीट किया था तो यहाँ पे हमें वैन न्यू का जो दिख रहा, तो जो चेंज हुआ वो नहीं दिख रहा कि भाई इसको डिलीट कर दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको दिखनी चाहिए। आप इस पे क्लिक करता हूँ तो वो दिख जाएंगे आपको। तो ऐसे ही ये अलग अलग ऑप्शन कोई भी है। अभी हमने बाकी ज़्यादा ऑप्शन यूज़ नहीं किए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं ज़्यादा ऑप्शन यूज करूँगा। तो बस आपने ये याद रखना कि कोई भी ऑप्शन, ठीक है, अगर जो चेंज हुए हैं वो आप देखना चाहते हो तो इस पे एक बार क्लिक कर दो। अगर वो चेंजेस नहीं देखने तो इस पे एक बार दोबारा करोगे, जब टिक हट जाएगा तो वो चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, टिक लगाने और हटाने के लिए दोनों के लिए बस आपको एक बार बार इन पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो ये टिक हट जाएगा, दोबारा करोगे तो टिक आ जाएगा। ओके, तो ये था। उसके बाद दो ऑप्शन तो ये हो गए। अब एक तीसरा ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। जी, जो ट्रैक चेंजेस यहाँ था, मैं ये तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ ऊपर वाला हिस्सा देखो, इसके दो हिस्से हैं इस बटन के, एक तो ऊपर है और एक ये हाफ पार्ट नीचे है। ऊपर वाले से तो ये ऑन ऑफ होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रैक चेंजेस ऑन और ऑफ कर सकते हो। जब ट्रैक चेंजेस ऑफ कर रखा होगा उस वक्त कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। देखो मैंने ऑफ कर रखा है, अब मैं कुछ डिलीट करूंगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने इसको होम को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, लेकिन कहीं पे वो क्रॉस का साइन या मुझे कुछ नहीं पता लगा यहाँ से कुछ डिलीट किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि चेंज जो है वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। वो रिकॉर्ड कब होगा, जब ट्रैक चेंजेस ऑन होगा। तो इसको जब ऑन करेंगे, अब कुछ भी आप चेंज करोगे, जैसे मैंने यू को सिलेक्ट किया और डिलीट किया, तो अब ये डिलीट होने की वजह से लाइन लगी आ जाएगी इसमें, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैक चेंजेस को ऑन एंड ऑफ तो कर सकते हैं। और नीचे से जो नीचे वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, ट्रैक चेंजेस जहाँ पे लिखा है इस ड्रॉप डाउन एरो पे, तो इसमें ये आपको तीन ऑप्शन आएंगे। इसमें से जो बीच वाला ऑप्शन है चेंज ट्रैकिंग ऑप्शंस, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ट्रैक चेंजेस ऑप्शंस का। और यहाँ पे जो मैंने बताया ना ये कलर वगैरह, जैसे आप शुरू में जब आप करोगे ना तो आपके ये रेड कलर में आएंगे दोनों, चाहे कुछ डिलीट करो चाहे इंसर्ट करो। फिर मैंने इसके कलर बट मेरे तो ग्रीन और ब्लू कलर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इंसर्शन के आगे मैंने कौन सा कलर सेट कर रखा है, ब्लू। आपका शुरू में क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा बायो थर्ड। और इसमें डिलीशन में भी आपका ये शुरू में ये सेट होता है। आप अपने कंप्यूटर पे अगर चेक करोगे तो आपको ये मिलेंगे यहाँ। ठीक है, तो अब देखो अगर ये मैंने सेट कर रखे हैं, अब मैं कोई चीज़ डिलीट करता हूँ। अब पहले तो ट्रैक चेंजेस को ऑन करना पड़ेगा, तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो क्या हुआ, डिलीट होने की बजाय ऐसे रेड हो गया। कोई नया लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, मैंने नया टाइप किया तो वो भी रेड कलर में आया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आएंगे शुरू में, बट अगर आप इनके कलर चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से आप कोई और, जैसे आप चाहते हो कि नहीं जिस चीज़ को मैं क्या करूँ डिलीट करूँ वो येलो हो जाए, सॉरी इंसर्ट, ये इंसर्शन का है, जो इंसर्ट करूँ वो येलो कलर में आनी चाहिए, वो जो डिलीट करूँ वो कौन से कलर लें, कौन सा अच्छा लगता है, वायलेट ले लें, चलो वायलेट ले लेते हैं कि जिसको डिलीट करूँ वो वायलेट कलर में आ जाए। और यहाँ से आप ये भी चेंज कर सकते हो, जो इंसर्ट हो, अभी देखो उस पर क्या लिखा है डबल अंडरलाइन, जो वर्ड इंसर्ट हो उसका कलर येलो हो और उसके नीचे डबल अंडरलाइन आनी चाहिए। डबल की बजाय आप और कुछ भी चेंज कर सकते हो इसमें, जैसे वो बोल्ड हो जाए, बोल्ड में लिखा है, येलो कलर हो और बोल्ड हो। और जो डिलीट करें वो वायलेट कलर हो और स्ट्राइक थ्रू की बजाय वो अंडरलाइन हो, मतलब जिसको डिलीट करें वो अंडरलाइन हो, ऐसे स्ट्राइक थ्रू ना हो। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। अब ये करने के बाद देखो जो भी है जो डिलीट किए गए हैं वो तो ऐसे नज़र आएंगे इस वायलेट कलर में और अंडरलाइन हुए हुए, और वो येलो कलर में आएंगे जो इंसर्ट किए गए हैं और थोड़े से बोल्ड भी दिखेंगे। ठीक है, वैसे येलो कलर थोड़ा क्लियर नहीं दिखता, आँखों में चुभता भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं येलो की बजाय कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ उसमें, ये ब्लू वाला ले लेता हूँ, स्काई ब्लू, तो ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ऑप्शन। और इसमें इसके अलावा भी, और सॉरी यहाँ पे जब ट्रैक चेंज ऑप्शन ना, इंसर्ट डिलीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है कि भाई जब किसी चीज़ को मूव किया जाए उसका कलर कैसा हो, अगर कोई टेबल है उस टेबल में कोई नई सेल इंसर्ट करो तो उनका कलर कैसा हो, डिलीट सेल का कलर कैसा हो। ठीक है, तो ऐसे और कई सारी चीज़ें, कोई मार्कअप यूज करे, मतलब कमेंट वगैरह मैं अभी सिखा नहीं रहा आपको, क्योंकि वो आपकी हायर क्लासेस में जाओगे तब होंगे। बट अगर कमेंट हो वो भी आपको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि नए चेंज का मतलब है कोई भी बदलाव क्या वो चेंज है।
अब चेंज में क्या क्या हो सकता है, किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई सेल इंसर्ट कर सकता है, कोई सेल डिलीट कर सकता है किसी टेबल से, कोई फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता है किसी की, बैलून वगैरह ऐड कर सकता है, कमेंट वगैरह ऐड कर सकता है। तो ये कैसे ऐड करेंगे ये भी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बस ये सिखा रहा हूँ कि ट्रैक चेंजेस ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो वो जब आपकी क्लास आएगी तो ये आप उनके बारे में आपको बाद में सिखाऊंगा कि जो कमेंट्स हैं वो करते कैसे हैं, ठीक है, उनको डिलीट कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, ओके, या रिमूव कैसे करेंगे, वो चीज़ें फिर बाद में अलग क्लास में आपको बताएंगे। तो आई थिंक आज का ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। ओके, तो मैं अब स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ कि कंट्रोल, ओके, स्टॉप शेयरिंग। तो आज जो करना था वो हमें इतना ही करना था। अभी आई थिंक टाइम भी हो गया, सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, 2:33 हो गया, 2:35 पे क्लास ओवर होती है। सो अभी बेटा जो कुछ किसी को भी, मैं सबको ही एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई भी फालतू की बात ना करे, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ ले। एक बार मैं सॉरी नहीं, अब आपके पास पावर आ गई है, जिसको कुछ पूछना है वो अपने आप को सिर्फ अनम्यूट कर सकता है, वो डायरेक्टली क्लिक करे। सर हाँ बोलो। कलर सिलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे डिलीट करना हो तो उसका कलर कैसे सिलेक्ट करेंगे? सर लैपटॉप में भी हो सकता है। जो डिलीट करना है मतलब वो किस कलर में आई? ओके, यस सर। ये स्क्रीन शेयर की मैंने वो करेंगे, ये जो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन है इसके नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे पहले तो, फिर इसमें से ऑप्शन आएगा चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये Okay, बॉक्स sir. आएगा, अब इस बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि भाई ये डिलीशन वाला लिखा है, डिलीशन का कलर आपको कैसा रखना है, जैसे अभी वॉयलेट कर रखा है कि जो वर्ड डिलीट हो उसका कलर वॉयलेट है, इसकी बजाय मैं डार्क ब्लू कर लेता हूँ। ओके, तो देखो जो जो वर्ड डिलीट किए गए, ये अपीयरेंस को डिलीट किया गया, व्हेन यू डॉक्यूमेंट, सर व्हाट डिड यू मीन बाय बलून? वो बता तो रहा हूँ बेटा, ये जो चीजें होती है ना, कमेंट्स, बलून और ये क्या होता है, ये एक पूरी क्लास होगी इनके ऊपर, थोड़ी देर में समझाने के नहीं है, ठीक है। तो जब इनकी टर्न आएगी ये क्या Okay, होता है sir. ये मैं तब आपको समझाऊंगा। ओके सर। बस अभी ये याद रखो कि बलून Okay, वगैरह sir. अगर कोई यूज करता है, वो भी अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो और वो किस कलर में शो हो, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो इसमें से, ओके। ओके सर। तो क्योंकि वो तो अभी थोड़ी सी देर रह गई इसमें, तो वो क्लियर नहीं होगा टॉपिक, तो आज ये टॉपिक क्लियर है अभी। बाय सर। ओके बेटा, यस बाय। सर। यस सर, बाय सर। किसी को कुछ Bye, पूछना है sir. और कोई बच्चा, रुको बेटा, बाय बोलना बंद करो। बाय बाय सर। सर। ये कुछ Bye, मत sir. बोलो, फिर बोले जा रहे हो। बाय सर। जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो रुक जाए, बाकी लीव कर सकते हैं। जो बाय बोल रहे हैं दे कैन लीव द क्लास। बाय सर। अगर कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम रह गई है, दे Bye, कैन स्टे इन द sir. क्लास। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ बाय सर। बाय सर। नाउ, यू कैन लीव द क्लास। अगर किसी को पूछना है वो रुक जाए, रेज हैंड कर ले, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा सिर्फ। किसी को कुछ पूछना है? यस, तानिया बोल रही है, आस्क। यस बेटा, यू आर अनम्यूटेड, अनम्यूट करो अपने आप को। तानिया कहाँ गई? रेज हैंड कर रही थी, रेज हैंड। सर योर वॉइस इज सर नॉट। गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया था, ऐसे अपने आप गलती से हो जाता है। अच्छा चलो, कोई और बच्चा पूछना चाहता है तो बोलो। Yes, any other student want to ask? No one? Okay, bye bye then. Bye bye, take care. अच्छा, कोमल बोल रही है कुछ पूछना है। कोमल, कोमल का हैंड रेज हुआ है लास्ट टाइम पे, फिर से रेज हैंड करो अगर कुछ पूछना है तो। कोमल want to ask something? कहाँ गई वो? एक बार स्क्रीन पे दिखी थी फिर गायब भी हो गई। आई थिंक उसका भी गलती से हो गया फिर। ईशान, अरे रेज हैंड करके लीव कर देते हैं, कैसे पागल बच्चे हो। ओके चलो बाय।